Hello students, welcome to my channel Self Study by Sheikh Tasneem. Today I am going to explain you on the topic of the French Revolution. French Revolution means the Francis Kranti. The French Revolution of 1789 was one of the earliest nationalist movements in the world. All the nationalist movements that took place in the world in the 19th century were influenced in one way or the other by the French Revolution. विश्व में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति दुनिया के सबसे शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन में से एक थी। 19वीं शताब्दी में विश्व में जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे, किसी न किसी रूप में फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। Now let me explain you the causes of the revolution. What were the causes of the revolutions? There were many causes which contributed to the outbreak of the French Revolution. ऐसे कई कारण थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के फैलने में योगदान दिया, जैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। French Revolution, there were many of the important causes that gave the outbreak to the French Revolution. The very first was the political causes, the social causes and the economic causes. Today I am going to explain you on the topic of the political causes. The political causes is the main causes of any of the country. It is a backbone of the country. Politic, राजनीतिक, ये हर देश की एक रीढ़ की हड्डी के समान होती है. If a country is strong with the political, any country strong with the politically, that means no country can लीड ऑन द कंट्री. अगर किसी भी देश के राजनीति बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत है, तो कोई भी दूसरा देश उस देश में कभी भी राज नहीं कर सकता. एज टुडे लेट अस स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेज. एट द बिगिनिंग ऑफ द 18th century, France had a hereditary absolute monarchy. 18वीं सदी में की शुरुआत में फ्रांस में वंशानुगत पूर्ण राजशाही थी. मोनार्की मीन्स जिस देश में राजा राज करते हों, मोनार्की. And here the country, the France was completely under the influence of the nepotism. So the king held himself as the representative of God on earth. राजा स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे. उन्हें पूर्ण शक्तियां प्राप्त थी और उनकी इच्छा ही कानून थी. He enjoyed absolute power and his will was the law. उनकी जो भी इच्छा होती थी वही उनका कानून बन जाता था. Louis XVI, who ruled over France at the time of the revolution, lacked leadership qualities. लुइस 16वें के नेतृत्व में गुणों का अभाव था. वह छोटी छोटी साजिशों में लिप्त रहता था और उसकी रुचि केवल शिकार करने में, खाने पीने में
अधिक थी। He indulged in petty intrigues and was more interested in hunting, eating, and merrymaking. Further, he was greatly influenced by his wife, Mary Antoinette. She was extravagant and interested in enjoying life. अब राजा जो था लुई 16वां, वो तो इंजॉय कर ही रहा था अपनी लाइफ को पूरी तरीके से। उसको लोगों की, अपने राज्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसी तरह से उसकी पत्नी भी वैसी ही थी। इसके अलावा वह अपनी पत्नी मैरी एंटोनियट से बहुत ही प्रभावित थे। वह राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते थे और पत्नी की तरह वह जैसे राजा था वैसे उसको पत्नी भी वैसी ही मिली। वह भी खर्चीली थी और जीवन का आनंद लेने में रुचि रखती थी। ये तो बात हुई राजा की और रानी की। Now let me explain you the most important causes about the French Revolution. If we talk in points, what are as follows. यदि हम फ्रांसीसी की क्रांति के मुख्य कारणों के बारे में बात करें तो वे विंध्यवार इस प्रकार है। The very first point, the important causes. The French administration was marked by nepotism. इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस में नेपोटिज्म बहुत ही ज़बरदस्त था। फ्रांसीसी प्रशासन भाई भतीजावाद से चिन्हित था। High posts were given to nobles and aristocrats who were not conscious of the duty. उच्च पद उन रईसों और कुलीनों से को दिए गए जो अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं थे। जिनको भी ऊंचा पद दिया गया था वे भी राजा की तरह ही खर्चीले और गैर जिम्मेवार थे। उन्होंने प्रजा की तरफ जरा भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। There was no uniform systems of law in the country. Punishments were rigorous and biased. देश में एक समान कानून व्यवस्था नहीं थी। सजाएं कठोर और पक्षपातपूर्ण थी। The aristocrats were not punished for certain crimes. कुछ अपराधों के लिए कुलीनों को दंडित नहीं किया जाता था। जो अमीर थे उनको सज़ा दी ही नहीं जाती थी और गरीब अगर ज़रा सा भी वो सज़ा भी उनको कुछ करते भी नहीं थे तो भी उनको सज़ा दे दी जाती थी। Common people hardly had any share in the administration. प्रशासन में आम लोगों की शायद ही कोई हिस्सेदारी थी। सारे तो उच्च दर्जे के लोग वही सब जिम्मेदारी लेके बैठे थे आराम करने की, रईसी ज़िंदगी जीने की, और आम जनता का उसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं थी। The system of elections was not prevalent at that time. उस समय चुनाव की व्यवस्था
प्रचलित नहीं थी। जैसे आज हो रही है चुनाव की व्यवस्था, वैसे उस टाइम पे नहीं थी, उस वक्त नहीं थी, क्योंकि उस वक्त राजा का शासन चलता था, मोनार्की। तो इसलिए कोई भी चुनाव की व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। These causes produced discontent among the masses. इन कारणों से जनता में असंतोष प्राप्त उत्पन्न हुआ और यही वजह बनी थी, यही कारण बना था रेवोल्यूशन का, क्रांति का। So this is what about today the political cause of the French Revolution। यही है आज के क्रांतिकारी फ्रांस क्रांतिकारी के बारे में। और ये एक कारण, राजनीतिक कारण जो मैंने आज आपको समझाया है। कल के वीडियो में मैं आपको दूसरा कारण समझाऊंगी, दैट इज द सोशल कॉजेस। So students, if you have liked this topic, the explanation of today, and you find it is worthful, अगर आपको लगता है कि आपके जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, so kindly subscribe my channel, press the bell icon for the further notification and more videos. Stay tuned, be connected with my channel, and then meet you tomorrow. Goodbye.